record. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Is my voice clear? Yes, sir. Yeah, Uzair Kadir and Zahid Beg, open up the cameras. Now, what I am saying is we have done a lot of things here. We have said that there is an overloading and there is overriding. And then there is what's called the shadowing. Okay. And there is hiding. And then there is obscuring. Okay. Obscuring is not nothing special here, but overriding is something special here. Overloading, you already know that if you have a method or constructor with the same name but different parameters, so that is allowed. So we are talking about the same class within a class. There are a lot of methods which are actually having different parameters, so that the call is Afrin Bashir is here. Who is Afrin Bashir? Afrin Bashir is here because she was removed in the group by Qasim sir, I guess, right? She was removed. Afrin Bashir was removed or something, or someone else? I guess Afrin Bashir was removed. One of the girls was removed from the group, na? Afrin Bashir has upon her face. She was Khoshqismat nafar is Qasim sir, never good. Zahid Beg's problem. Okay, he's coming again. Uzair Kadir, you have to sit in a one place if you're giving class. Are you tracking Ramud? जी सर हम आज ट्रैकिंग पे हैं Anyways, let's now continue with this concept. Those guys who have no camera, please open up the camera. Otherwise, I have to remove you. Okay, Afrin Bashir ga ye. Mask lagi din toj mein aayi thi. Anyways, so what is overriding is that you have a parent class. You have a parent class and you have there a method. There are a lot of methods. One of the method is marriage. Okay. And then there is a child class. Who is the child of this parent class? We know extends, child extends parent. यानी कि जो भी पेरेंट क्लास का है वो इधर आएगा. लेकिन जो ही मैरिज की बात आती है चाइल्ड बोलता है ये चाइल्ड मुझे सुन ये करबू पाना है. ठीक है. So what child does is it overrides this marriage. Even though that marriage has gone into it, whatever is here, that has gone into the child class. But child class says, no, sir, sab manega, par marriage khud karega. Yani ki, it will override this method. That means this marriage method is already here, which has come from the parent class, but child is doing its own marriage method. And this marriage method overrides this marriage method which has come from the top. So override का मतलब ये है कि आपके पास दोनों है. So override will be in inheritance. Overloading will be without inheritance in a single class. So overriding will be within inheritance when the things come from the top to bottom, from parent to the child, and you are still saying, no, I will do it of my own. Okay. Now, I told you that variables cannot be overridden. Okay. They can hide, but they cannot override. This was the one thing there. Now, let us see what we had done here. Clear, all right. What we had done here, let us see first that thing. I'm saying we have a class 1, which is the parent class. Okay. And this is the class childs. This is the child class. Because I'm saying childs and all, because ye name ka already udhar hoga na. इसलिए वो child रखने नहीं दे रहा क्योंकि already child class इस package में है कहीं पर. इसलिए मैंने child is लिखा इसको, या कुछ और लिख सकते हो. अब one class मेरा क्या है? ये parent class है और child क्योंकि ये क्यों इसका child है? क्योंकि it extends one. When you say extends one, that means it's a child of this. It's a subclass of this. So whatever is here comes here. So x88 that goes down, int show x that comes down. By the way, Fahim was saying right, because in C++, there is a concept is same, but the syntax is different. In C++, we have the virtual keyword, wherein the things happen like this, like what happens in Java, because we have a virtual. So we said here, we created here 3 variables.
reference variables. One, I created reference variable. I may be asking questions today, so better you answer all. So be quiet. अगर answer आता भी नहीं है कोई बात नहीं है, because I have given you pre-class video. You should be prepared for the class. So if it is 1 O, it is of type parent, like 1. And because 1 is a parent, so it's of type parent class. Now, if I print using this O, the X and the show, because we have two things, either there is X and there is the show method. So ये अपना दिखाएगा, because this is done by the JVM. JVM sees at the runtime what this reference variable is pointing to. This reference variable is O is pointing to the one object, that is object of the same class. Okay, I will send it. Wait. Object of the same class. Okay, so if it at all prints O dot X and O dot show. So Shari comes में शुरू करता हूँ. What will be the O dot X will print us here? Password. Bisco किधर गया है? Bisco ये रहा. 88 sir. हाँ, Shari Ahmed, what will be printed? O dot X. हाँ, मेरे कान में mic नहीं है. Oh, I can't hear. Sorry. I have not put on the headphones because आवाज तो इसको निकली कि हेडफोन से और मैं सुनाई नहीं दे रहा था मुझे. हाँ, क्या बोला आपने? 88. He's saying 88. Why? Because it will point to the parent only. And O dot show. What will the O dot show say? इसी क्लास का मेथड जो है. Yes. Yes, exactly. Those guys who have not put on their camera, I will remove them in a couple of minutes. Better they put on their cameras. Okay, Farsha, I told you ना focus करो थोड़ा सा अपना face इसमें. Okay. Now what I am saying is, you don't want to put up the mask. That's why you are doing that, right? Anyways. Now, if I am creating after this, I created the child T equals to new childs. So the T, Afrin Bashir, T belongs to what? What is T? T is a reference variable, which points to which object? Afrin Bashir, answer me. Which points to? T points to class. Which class? I couldn't hear you. T points to child class, na? Child class. Yes, T points to child. यानी कि T का ही reference variable भी of type child है, and it is pointing to the same type class. Child class. So when I say T dot X and T dot show, Arshin, what will T dot X and T dot show do? सर T dot X child class के X के variable का value print करेगा और T dot show X child class का function जो है उसको method we say method. Okay, हाँ, very good. Now the question is here, when we have one P, so what I'm creating here, I'm creating Basit, I'm creating P of type, yes, Basit, parent equals to new childs. What I'm doing, Kaunan, here, I'm creating parent class reference variable, but what I'm putting into it? So child class. Child class into it. That means object of child class into it. So P is a parent class and is pointing to the child class, this object. So when I say P dot X and P dot show, what will happen? Who will tell me? Voluntarily, anybody can tell. सर child class हो जाएगा क्या? Because first thing is, what is JVM doing? JVM sees at the runtime what is in the reference variable. Okay, in the reference variable P, we have which class, which object in it? The childs, right? So that means, because the child class has everything, it has this X is equal to 88 from the one in inheritance, and it has
ऑल्सो इट्स शो मेथड, द पेरेंट क्लास का शो मेथड, और अपना भी शो है और अपना भी एक्स है इसको। लेकिन ये चाइल्ड देखेगा यहाँ पे, इट विल सी द चाइल्ड हियर व्हेन आई से p डॉट शो, it will see what is p pointing to. JVM see what is p pointing to. So that is your late binding or polymorphism, what you call as a late binding, okay, or dynamic polymorphism. It will see what is p pointing to, that is child. So it will call the child's show, because child के पास दोनों शो है ना, इसका पेरेंट का भी शो है, अपना भी शो है, बट लेकिन ये चाइल्ड का शो करेगा, यानी कि इस शो ने क्या किया, फिर ओवरराइड, इस शो ने ओवरराइड किया उसको। लेकिन ये क्या दिखाएगा, p डॉट एक्स, क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं वो ओवरराइड नहीं होते हैं। सो व्हाट विल इट शो? Parent class is X. It shows parent class is x. X is equal to 88. That is parent class x, not the child class is x. Because when we see the variables, it will see the reference variable. It will not see the object which is pointing to. And when we try to access the variables using the reference variable, at that time, the reference variable, what is the reference variable of type? It is of type what? P, which is of type 1, that is parent class. So it will not override. Okay, it will, the variables are not can't be overridden. It will see the reference, it will see the reference, and it will print the it will print this, it will print the parent class is 88, right? X is equal to 88, that's a parent class is 88. Does it make sense? Now this is called as this is overriding. So what is method hiding? What is method? One is method overriding and one is method hiding. So if I may put up here this thing, one is method overriding और दूसरा हमारे पास है method hiding. अब ओवरराइडिंग कहां पे होती है? ये होती है अगर आपके मेथड नॉन स्टैटिक है। और कौन करता है काम इन पे? JVM काम करता है इन पे, ठीक है ना। ये हमें डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं। यानी कि जब आपने p डॉट शो किया, अब ये शो किसको कॉल करनी है? ये पेरेंट वाले शो को कॉल होगी, जो पेरेंट वाला शो आया था चाइल्ड के पास, क्योंकि हमारे पास था ना, वी हैव ए पेरेंट क्लास, उसके अंदर एक मेथड थी शो, ठीक है। और जो मेरा चाइल्ड क्लास है, आई एम लिटिल गेटिंग स्लोअर बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू गेट दिस, ये चाइल्ड क्लास है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरेंट। इसके पास भी एक शो मेथड है, लेकिन इसके पास दोनों है ना, ये भी है ना, इसके पास पेरेंट का भी शो है, अपना भी शो है। लेकिन जब आप p डॉट शो करोगे, ठीक है, ये शो किसके साथ बाइंड करनी है? आप ये इस वाले के साथ बाइंड करनी है, इस वाले के साथ बाइंड करनी है। इट विल बी डिसाइडेड एट द रन टाइम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। सो जो कॉल है ये किस मेथड के साथ बाइंड होगी, दैट इज लेट बाइंडिंग। वही सी जो कल फहीम बता रहा था कि C++ में हमारे पास अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और चाइल्ड क्लास का ये है, कौन ये है, ये तब भी बेस क्लास ही पेरेंट क्लास का ही दिखाएगा, ये चाइल्ड क्लास का नहीं दिखाएगा, जिस तरह यहाँ दिखा रहा है। वहां पे एक्चुअली वर्चुअल होता है ना हमारे पास, वर्चुअल कीवर्ड। अगर मेथड वर्चुअल है तब जाके ये ऐसा काम होगा कि अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और चाइल्ड क्लास का ये है, अब p बाइंड होगा टुवर्ड्स द चाइल्ड। अब आप कहोगे कि ये तो पता ही है कि चाइल्ड है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना किस चाइल्ड के साथ। मे बी इसके पास 2 4 5 10 चाइल्ड है, ठीक है। अब p के अंदर कौन सा चाइल्ड गया, वो रन टाइम पे जाएगा ना, जो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने p में डाला ये वाला चाइल्ड, ठीक है। अगर मेरे पास 5 6 और ऑब्जेक्ट क्लासेस होंगे, चाइल्ड क्लासेस होंगे, मैं मे बी उनमें से डालूंगा किसी को। अब वो कौन वाला जाएगा इसमें? सो ये लेट बाइंडिंग हो गई ना, ये पहले ही बाइंड नहीं होता। अगर आपको नॉर्मल मेथड है, उसको आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर एक मेथड है, कोई डिस्प्ले मेथड है,
और मैंने चाइल्ड क्लास का बनाया, मैं कहूंगा चाइल्ड क्लास का इसका ये जो है ना वन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ओ डॉट डिस्प्ले करूंगा, वो पता ही है कि यही बंदा है, सो इसको अर्ली बाइंडिंग कहेंगे, ये तो सीधे ही इसके साथ ही अटैच होगा। अगर मैं ओ डॉट डिस्प्ले करूंगा वो इसी के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता मेरे को कि मुझे ये शो ये वाला शो कर रहा है कि ये वाला शो कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने क्या डाला इस पी के अंदर। आपने चाइल्ड क्लास डाला है तो चाइल्ड क्लास का शो होगा, यानी कि ये ओवरराइड करेगा इस मेथड को, पेरेंट के मेथड को, ठीक है। लेकिन मेथड हाइडिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास स्टैटिक मेथड्स है, योर मेथड्स आर स्टैटिक, ठीक है। जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए आपको वेरिएबल बनाने इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स हैं या स्टैटिक मेथड्स हैं, उनको कंपाइलर पहले ही देख के स्टैटिक एरिया में डाल देता है, चाहे आपने ऑब्जेक्ट उसका क्लास का बनाया या नहीं बनाया, ठीक है ना। अगर नॉर्मल मेथड्स ये है, अगर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो ये वाले मेथड्स या ये वाले वेरिएबल्स जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनका वजूद ही नहीं आएगा। क्या विल दे बी एनीवेयर? नो, they will be nowhere. They can come into being only when you create an object of this class, ठीक है ना, समझ आ रहा है। लेकिन स्टैटिक अगर आपके पास वेरिएबल है या स्टैटिक मेथड आपके पास है, उनको कंपाइलर पहले ही निकाल के स्टैटिक एरिया में डाल देता है, हालांकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, बट यू कैन स्टिल एक्सेस देम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे पी डॉट शो करोगे, ठीक है, वो पेरेंट वाला ही कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा? क्योंकि ये अर्ली बाइंडिंग होगी, यानी कि अगर स्टैटिक मेथड है ये कंपाइलर करता है, पहले इसको करते हैं कंप्लीट। ये स्टैटिक अगर मेथड है उसको जेवीएम नहीं कंपाइलर करेगा, सो कंपाइलर इसको अर्ली बाइंडिंग करेगा, अर्ली बाइंडिंग। सो वी विल हैव अर्ली बाइंडिंग हियर, राइट। लेट मी क्लियर द क्लटर एंड जस्ट ट्राई टू एडमिट शाहिद हामिद डार। सो वेयर इज इट? अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा मेथड यहाँ पे है ये स्टैटिक है। स्टैटिक में इंट से पहले लिखूंगा, इंट के बाद लिखूंगा, बताओ कोई। इंट से पहले, इंट से पहले आपको अगर ये याद नहीं रहेगा तो मेन याद रखना चाहिए। जो मेन है देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, जो रिटर्न टाइप है वो स्टैटिक के बाद आ रहा है, और जो पब्लिक है कि क्या है वो स्टैटिक से पहले लिखना है, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक वाइड सबको याद रहेगा। तो यानी कि अगर मेरा ये मेथड यहाँ पे स्टैटिक है, STATIC, now it will have one more problem. What is it returning? What is it returning? X. So I am saying in a static method return X. Isn't it लेकिन वो भी बना ही नहीं होगा, common sense से करो। हाँ, yes, बोलो, शाबाश। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ बाइंड करेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना नहीं है। Exactly. क्योंकि स्टैटिक मेथड के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं, वी कैन एक्सेस इट विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट, राइट। अब अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो ये एक्स का वजूद ही नहीं है, और आप इस स्टैटिक मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हो, क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है ना। तो ये है ही नहीं, तो ये आपको सीधे कंप्लेन करेगा कि भाई आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कर रहे हो, ये व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमको इंट भी स्टैटिक ही बनाना है। cannot make a static reference to a non-static field. Yes, so therefore we should have, we can access only static variables in a static method. अगर static method है, इसकी common sense है कि मैं non static variables को कैसे access करूंगा इसमें, क्योंकि मैं इस static method को बिना object create किए इसको access कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक मेथड को आप इसमें एक्सेस करोगे तो उनका तो वजूद ही नहीं है, तो सीधे बोलेगा कि नहीं ये तो कंप्लेन है। सो इसलिए उनको कंप्लेन को दूर करने के लिए मैंने इसको यहाँ ये रखा। लेकिन अब जब यहाँ पे आप आते हो जो कि आपका चाइल्ड क्लास है, तो ये क्या बोल रहा है? सो ये कह रहा है कि भाई इसमें भी प्रॉब्लम है इसको, द इंस्टेंस मेथड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड, क्योंकि आप ओवरराइड करना चाहते हो शो एक्स। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि मैंने जो पेरेंट क्लास का मेथड शो एक्स था, क्या बोल रहे हैं, शो एक्स ही था ये स्टैटिक मेथड। हाँ अच्छा, ये दूसरा है, ये पैरामीटर मैंने किया था ओवरलोडिंग के लिए, इसको छोड़ो भी पहले, ठीक है। यहाँ पे ये शो एक्स है, ये स्टैटिक मेथड है, और मैं शो एक्स को ओवरराइड करता हूँ।
और मैं ओवरराइड कर रहा हूँ स्टैटिक मेथड को, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. सो आई हैव टू मेक दिस आल्सो एज अ स्टैटिक. दिस इज सेम लॉजिक. And again you are trying to return this x which is non-static, that is not allowed. So अगर static की बात हो रही है तो फिर सारा static ही होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप वो चीज एक्सेस करना चाहते हो कि जो क्लास के अंदर नहीं है, जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के बिना ही फिर क्रिएट होने चाहिए ना वो चीजें, वही चीजें हम स्टैटिक में कर सकते हैं. हम उसमें वो चीजें नहीं कर सकते कि जो कि भाई ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बनेंगी. ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के बगैर भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ. अब अगर आप उसको एक्सेस करोगे वहां से एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स को ट्राई तो उसका जन्म ही नहीं हुआ और उसको वो तो बोलेगा ना ये क्या चीज है. जब आप इस स्टैटिक मेथड को एक्सेस करोगे विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और वहां पे आप इस एक्स को फिर, जो कि अगर नॉन स्टैटिक है एक्स जो कि बना ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे एरर आएगा ना, बोलेगा ये क्या किसको कर रहे हो, तो है ही नहीं कोई चीज एक्स, अभी तो बना ही नहीं है. ठीक है. सो नाउ इफ आई गिव इट अ गो, कि अब मैं यहाँ पे p डॉट एक्स कर रहा हूं और p डॉट शो कर रहा हूं. सो पहले चाइल्ड का हो गया था, इसमें बहुत सारे एरर्स बाकी क्लास के हैं. नाउ इफ यू कुड सी हियर, नाउ चाइल्ड क्लास का एक्सेस नहीं हुआ जब आपने p डॉट शो किया. बहरहाल ये तो p डॉट एक्स तो 88 दिखा रहा था ना हमें पेरेंट का ही, क्योंकि वो ओवरराइड नहीं हुआ, उसने हाइड ही किया था, दैट्स व्हाट वेरिएबल हाइडिंग. लेकिन वहां पे चाइल्ड क्लास दिखा रहा था, लेट बाइंडिंग होती थी. लेकिन जब स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड आपको पेरेंट का ये दिखाएगा शो एक्स. ये डिफरेंट है ना, इसमें अगर आप देखोगे इसमें चाइल्ड क्लास मेथड लिखा है, इसमें पेरेंट क्लास मेथड लिखा है. ठीक है ना. अब इसके पास दोनों है, जो p मैंने अगर मैं आपको कहूंगा p डॉट शो, क्योंकि p के पास चाइल्ड है. लेकिन अब अगर स्टैटिक मेथड्स हैं तो वो रेफरेंस देखेगा, वो ये नहीं दिखेगा कि इसमें कौन गया, वो दिखेगा रेफरेंस. क्या दिखेगा? इट विल सी द रेफरेंस. रेफरेंस वेरिएबल क्या है? रेफरेंस वेरिएबल p है ऑफ टाइप पेरेंट. सो स्टैटिक वेरिएबल चूंकि पहले ही जन्म लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक मेथड हो, उनको पहले ही जन्म मिलता है, उनके लिए तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो उनको हम क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अब बहरहाल हमने क्लास बनाए यहाँ पे है, तो जब मैं p डॉट शो करूंगा, अब इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा. इसको ये देखेगा कि भाई रेफरेंस वेरिएबल कौन है, रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है, तो पेरेंट का शो एक्सेस होगा. इट इज डन बाय द कंपाइलर ऑल द कंपाइल टाइम पर ही. इसने इस p को बाइंड किया हुआ है किसके साथ? इस शो के साथ, जो कि स्टैटिक था. अगर स्टैटिक मेथड है, अगर आपके कहीं पर भी स्टैटिक मेथड शो एक्स है, आपने कहा p डॉट शो एक्स, तो वो उसके साथ बाइंड हो गया, चाहे आप कुछ भी इसमें डालो, क्योंकि ये जो डल गया ये रन टाइम पे डल गया ना इसमें, ये जो लाइन एग्जीक्यूट हो गई. लेकिन कंपाइलर जब इसको कोड को देखेगा, वो इस p डॉट शो को अपने रेफरेंस वेरिएबल के जो है रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है उसके साथ पहले ही बाइंड करेगा, अर्ली बाइंडिंग हो जाएगी. ठीक है. एंड इट डजंट मैटर कि आपने इसमें कौन सा चाइल्ड डाला, चाइल्ड 1 डाला, चाइल्ड 2 डाला, चाइल्ड 3 डाला, इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर स्टैटिक वेरिएबल है वो रेफरेंस देखेगा. अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो रेफरेंस वेरिएबल नहीं दिखेगा, वो दिखेगा रेफरेंस वेरिएबल में कौन डाला. ठीक है. और जो डाला उसी का शो एक्स होगा. अगर चाइल्ड 2 का होगा तो जैसे मैंने कहा था आपसे, हमारे पास एक ड्राइंग है और फिर मेरे पास एक उसमें एक मेथड है ड्रा, और फिर मेरा सर्कल है, मेरा रेक्टेंगल है, मेरे बहुत सारे ये है. ठीक है ना. अब हर एक में ड्रा है, सर्कल में भी ड्रा, ट्रायंगल में भी ड्रा, रेक्टेंगल में भी ड्रा एंड ऑल दैट. ठीक है. अब मैं करूंगा क्रिएट पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे p किया, फिर कहूंगा p डॉट ड्रा. ठीक है. अब ये ड्रा किसको कॉल करेगा? देखिए मैं यहाँ पे ये समझिए ये बात कि मेरे पास एक क्लास है, ये मेरे पास एक ड्राइंग क्लास है, इसमें एक मेथड ड्रा है. अब मेरे पास एक सर्कल मेथड है, इसमें भी ये मेथड ड्रा है. ठीक है. अब मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल, इसमें भी एक ड्रा मेथड है. मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके पास भी एक ड्रा मेथड है. मैं बनाऊंगा इस पेरेंट क्लास का, जो ड्राइंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ड्राइंग क्लास का बनाऊंगा डी. अब मैं कहूंगा डी डॉट ड्रा. अब ये डी डॉट ड्रा किसको कॉल करेगा? इसको मारेगा कॉल, इसको कॉल मारेगा, इसको मारेगा कॉल, या किसको मारेगा? अपने को मारेगा कॉल. ये डिपेंड करता है कि डी में कौन सा ऑब्जेक्ट गया, न्यू रेक्टेंगल गया, न्यू ट्रायंगल गया, या न्यू सर्कल गया, या कौन गया. ठीक है ना. जो इसमें गया
वो अगर ये मेथड स्टैटिक हो गया, अगर ये मेथड क्या हो गया, अगर ये मेथड स्टैटिक है, तो फिर ये नहीं दिखेगा कि कौन गया इसके अंदर, ये दिखेगा रेफरेंस किसकी है, वो पेरेंट की है, बस इसको कॉल होगी, दैट्स कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जस्ट टेल मी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Having multiple forms of one thing. Yes, poly means many, forms means जैसे मैंने कहा कि मैं as a teacher आपके सामने टीचर हूँ, same person in the father, in front of father is a son, in front of my son I am the same person who is father, in front of my sister I am brother. Okay, so for somebody I am nephew, for somebody I am mamu. So what is it? I am, this is polymorphism. So that is what we do here. We are trying to create a method draw which can call, same method can call anything, same method can draw me the circle, same method can draw me, same call I'm saying, same call can draw me the rectangle. And it is possible because of late binding, that I'm not binding this draw method to any of these this call to any of these methods, rather I am waiting at the runtime what will go into the D. ठीक है ना, समझ आ रही है? और इस सारे चीज को कल्मिनेट करने के लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है और इंटरफेसेस है, वो वीडियोस देखना, ठीक है ना, पूरे से। नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मेरा है सर, यस सर जब ये जो क्लास 1 का स्टैटिक इंट है ना x इज इक्वल टू 88, जब क्लास चाइल्ड इसको एक्सटेंड करता है तो ये इसमें भी आता होगा ना, ये वाला x, मतलब स्टैटिक इंट x88 किस में आता है? मतलब जब चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड करता है, ये वेरिएबल आछना आसान तथ मज, एब्सोल्युटली ये आछना स्टैटिक, ये आछना स्टैटिकली तथ मज, मगर हां ये आछना स्टैटिकली अथ मज। यस यस, इट विल बी स्टैटिक, इट विल बी स्टैटिक, लेकिन मसला ये है कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हो लाइक दिस, जहां पे पेरेंट क्लास का ये है, ठीक है, दोनों उसके पास दोनों है, लेकिन पेरेंट क्लास का जब आपके पास है ना p और चाइल्ड उसके अंदर है, तो वो देखेगा नहीं कि चाइल्ड क्या, वो ये एक्सेस करेगा। अगर आप चाइल्ड का भी बनाओगे, यहाँ पे चाइल्ड का ही बनाओगे p, तो फिर चाइल्ड वाला एक्सेस होगा, है तो दोनों इसके पास, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का मसला ये है कि दे विल गेट बाइंडेड अर्लियर, वो बाद में बाइंड नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हो 44, फिर आपको काम करना पड़ेगा कि आपको इसका ऑब्जेक्ट उसी रेफरेंस वेरिएबल उसी का बनाना पड़ेगा, जिसका रेफरेंस वेरिएबल होगा उसी का वेरिएबल एक्सेस होगा, ठीक है। बस वना मतलब ये स्टैटिक इंट आछना या चाइल्ड क्लासेस में त वोतमुत, अगर अस बनाए स्टैटिक इंट शो फंक्शन बनाए, पत करनायो रिटर्न x, सपोज अस ओस न युस एमस पनुन वेरिएबल छ x, अस बनाओ इन स्टैटिक, ये बनाओ से कहीं, ठीक मैं बनाओ स्टैटिक याद करक छ कॉल, ठीक है। मगर तशना मगर ये कुछ ये जो आपका यहाँ पे है वेरिएबल कौन टाइप है, रेफरेंस किसका है? रेफरेंस पेरेंट क्लास। सो ये पेन फर्क ये छु या न छु गसन ओवरराइड, क्या ये मेथड ही गस ओवरराइड, ठीक है। ये हाय हम सुन पी सुन, ये किसका दिखा रहा है यहाँ पे? पी का ही दिखा रहा है, क्योंकि जो रेफरेंस वेरिएबल होगा को अगर से रेफरेंस वेरिएबल ऑफ चाइल्ड छु तेली ये हो फायदे गो अशन तेल हुतन फर्क पेवान कहीं अगर इस तथ मज बनाओ ते हु स्टैटिक या मा बनाओ, मगर पे फर्क ही, बिकॉज़ ये ना पी ये छु मतलब ये छु ये कि अगर से पी वेरिएबल छु पेरेंट क्लास, फॉर एग्जांपल छु मसला ये कि च के मेथड्स थमित, ये छ तो छु दुपान ये क्या छु स्टैटिक क्या बापत लगे बहुत दपान कि मे मेथड्स पेरेंट्स मेथड वारिया मैरिज ये अथ मज पन प्रोटोकॉल फैमिली प्रोटोकॉल, बहुत यहां यह गोस ये गस मे चाइल्ड ओवरराइड कर यी फॉलो कर प्रोटोकॉल मेथड मे चाइल्ड तक ये फॉलो कर, सह हे ओवरराइड कर बनावन स्टैटिक बनावन पगह अगर मैं पत ना पेरेंट क्लास मे रेफरेंस वेरिएबल आसि बेम चाइल्ड क्लास त्रा तथ मज, मगर मे स्टैटिक मेथड आसि सह मा गस ओवरराइड, समझ सह गस ओवरराइड गो बहुत
मे गोस प्रोविजन मिलुन कि अगर पेरेंट क्लासेस कंपलसरी ना सब यह से करुन, यू हैव टू डू इट, ठीक है, यही करो, ये से वन जो मेथड मैंने बनाया बस यही आपको फॉलो करना है, तो उसको मैं स्टैटिक बनाऊंगा, ठीक है, इस सिनेरियो में जबकि पेरेंट का वेरिएबल होगा और चाइल्ड क्लास में उसमें डालूंगा। अगर हुआ ऐसे कि सेम क्लास सेम या ऐसे रेफरेंस वेरिएबल आए तेल इशू कहीं, तेल पाथ इशू होय कर पानी सी No, इस पर एस हायो ना हम स्टेटस एरर ये लेस रिटर्न इस करा शो सिंपल एक्स एस उस एक्स बनोमुत स्टैटिक वरे नॉर्मल सो पाथ Off cases- ये off एक्स cases बनियों तो जब एक्स बना ही नहीं था तो वो कहां उसमें एक्सेस करेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मतलब युस वह चाइल्ड क्लास कर ना चाइल्ड क्लास मज बनो अगर तथ मज लेखो एक्स नॉर्मली तन हाय ये केसस मज हाय ये क्या एरर क्या इवन इफ अगर ना डिक्लेयर तह कोर्मुत अमिस पन स्टैटिक एक्स एग्जैक्टली कैसे अमिस छु क्या अमिस छु हुम्युक सही राइट राइट कैसे तेल मैं पे अमिस हाइडिंग जरूरत थी I got your point. Hydration करने जरूरत की केस already I think you're right. Now we put all these concepts in abstract class, which is the बात कि मेरे पास एक कॉलेज मैंने आपको वीडियो दिया, वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया होगा उसमें, मुझे अब याद भी नहीं पूरा, only 2 minutes left, कि मेरे पास एक क्लास जो ये पेरेंट है, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास कोई है, जैसे कि हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पे कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा पर्सन क्लास। इस पर्सन क्लास में वो सारी चीजें मैं रखूंगा, जैसे नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। फिर मेरे चाइल्ड क्लासेस कोई स्टूडेंट क्लास है या मेरे पास टीचर क्लास है और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के क्लास है, नॉन टीचिंग स्टाफ। ये कॉलेज का हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। अब स्टूडेंट के पास नेम है ना, उसके पास फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, पिन होता है, वगैरह वगैरह, वो 10-15 फील्ड है। वो टीचर के पास भी है, मेरे पास भी मेरा नेम है, टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, वगैरह वगैरह, इसके पास भी वो है, ठीक है। अब मैं वो सारी चीजें यहां रखूंगा जो कॉमन सबके पास है। अब फिर स्टूडेंट का अपना फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है, वो टीचर को रोल नंबर नहीं हो सकता, टीचर को मे बी सैलरी है, या यहाँ पे नॉन टीचिंग है, नॉन टीचिंग को मान लीजिए पोस्ट है अपना वेरिएबल। बाकी ये जो सारी चीजें यहां पर है। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि जो पर्सन क्लास है इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये कोई चीज है ना, इच्छा कहाँ चीज पर्सन जनरल टर्म्स जनरल फीचर्स जनरल, it is purely for inheritance. I want this guy to be inherited into these guys, ठीक है ना, I want these to be inherited here, here and here. Do you understand? So I do not want to create object of type person. It makes no sense. It makes no sense to make it मतलब पर्सन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, फजूल है, वो तो कोई चीज ही नहीं है पर्सन। ये मैंने ख्याली एक चीज रखा, इमेजिनरी एक चीज रखा पर्सन, ताकि इसमें जो मैं सारी चीजें रखूंगा कॉमन चीजें, वो जाके मेरे को इनहेरिट होके यहाँ 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 आए। सो अगर आप इसका इंस्टेंस नहीं बनाना चाहते हो तो इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखो। When you create it abstract, it cannot be instantiated. We have less than 1 minute. Please open up the camera so that I can take the photo. ये बाकियों ने कैमरा क्यों नहीं ऑन रखा है? I should remove them. Why I'm keeping them here? Sajid Mushtaq, open up the camera. Shah Zubair, show your face. Irfan Afzal, I'm not seeing your face. Come on quickly.